Hello everyone, I'm Radhish Sharma, your inquisitive boy, and today we are going to shoot the second video of the segment Poll Call, your segment where we do political call. And as the political season is going on in 5 states with crucial elections going on in UP, Manipur, Goa, Uttarakhand, and Punjab, today we are going to focus on one of those states. So today basically we are going to shift our focus on Punjab. Everybody thought that UP election will be much more interesting because there was a direct fight between BJP and SP and to some extent Congress and BSP as well. So people were watching those four-cornered fight in the UP, but which came as a surprise is Punjab, because we are seeing and watching and witnessing all this twist and turn in Aam Aadmi Party naming Bhagwant Mann as the CM candidate, in Congress naming Charanjit Singh Channi as the CM candidate, and the allegations that are coming up again and again. And the whole political fulcrum of Punjab is right now in a very bizarre state, because what happened earlier was like in previous election, SAD and BJP were in coalition and they were fighting against Congress from years, but this time SAD is fighting alone. BJP is having a coalition with this Punjab Lok Congress, which is headed by Captain Amarinder Singh, who is a veteran Congress leader who was also the CM for 4.5 years before Charanjit Singh Channi took over. So we are going to talk about everything that is happening on the last day of this Punjab election. As the political election is going to wind up, we are going to check who made how much stain in this election. So let's get started. Starting off from the controversies that were going on from years. Started from Congress, where there was a great disgruntled group of the MLAs who were very angry against the Captain Amarinder Singh because he had not done much of the work on the ground in COVID times and even earlier, because his government was actually accused of making a bureaucratic system and with no key availability to the local people. So it was said that कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपनी राजाई में रहते हैं, कभी फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकलते हैं. तो इसके चलते देयर वाज अ होल पॉलिटिकल ड्रामा विच वेंट ऑन टू द कांग्रेस. स्टार्टिंग हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू ने लड़ाई शुरू की, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया कि कैसे हुआ था. उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं हमारे चैनल पे अगर आप और जानना चाहते हैं. तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इनके खिलाफ बगावत शुरू की तो फिर कांग्रेस हाईकमान ने एंट्री ली, नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की पोस्ट से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि एक दलित सिख समुदाय से आते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया. और सारे पॉलिटिकल पंडित्स ने ये बोला कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है. इवन विद इन कांग्रेस पार्टी, मनीष तिवारी एंड सुनील झाकर सेड दैट शायद राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक इतिहास का ये सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है और शायद आगे भी रहे. इससे बेटर डिसीजन शायद वो कभी ना ले पाएँ और ना उन्होंने पहले लिया है. उसके बाद पूरा जो सिनेरियो था वो कांग्रेस में थोड़ा ठीक होता हुआ देखा गया, लेकिन फिर हमने बगावत के स्कोर तब भी हमें दिखते रहे. Then the fire went on and passed to the आम आदमी पार्टी, जिसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा. बिकॉज पीपल वर सेइंग दैट अरविंद केजरीवाल वॉज एट फर्स्ट रिलक्टेंट टू प्रोजेक्ट भगवंत मान एज अ सीएम कैंडिडेट बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस एल्कोहलिक एलिगेशन कि वो कभी पार्लियामेंट में ड्रंक होकर चले जाते थे वगैरह. तो उसके चलते वो देख रहे थे और दूसरी बात यह है कि पंजाब जो है दिल्ली से कंपेरेटिवली एक बड़ा राज्य है. तो क्या ऐसा ठीक होगा कि सेंट्रल लीडरशिप एक छोटे राज्य पे, जो कि पूरी तरीके से एक स्टेट भी नहीं है, उस पर राज कर रही है, और जो उसका स्मॉल स्टेट लीडरशिप है वो उससे भी बड़े स्टेट का सीएम है. तो ये जो था एक ईगो प्रॉब्लम और एक सेंट्रल लीडरशिप का और स्टेट लीडरशिप का बैलेंस बनाने का जो प्रॉब्लम था वो आम आदमी पार्टी में दिख रहा था. बट देन दे क्लेवरली सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेइंग कि हम जनता से पूछेंगे कौन सीएम बनाना चाहता है. उन्होंने जनता को एक नंबर दिया, उसमें उन्होंने कहा कि यू हैव 4 days or something, some time you have to make a call on this number and tell us that whom you want to pick as the CM candidate. He said that many people voted for Arvind Kejriwal, but he was not in the race, so he deleted all those calls. And the second number was this Bhagwant Mann with 93% of non-Kejriwal votes in that lot. तो मतलब कि एक बड़े मार्जिन से भगवंत मान को जनता ने अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा देखा और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया.
बट पॉलिटिकल जो ड्रामा था वो सिर्फ यहीं नहीं रुका। हमने देखा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने निकाला, वो जो है अपनी नई पार्टी बना करके बीजेपी के साथ कोएलिशन कर रहे हैं। वही बीजेपी जिसके हार्शेस्ट क्रिटिक कभी रहा करते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ऑल्दो हमें पहले से दिखता था कि थोड़ा बहुत उनका जो सेटलमेंट है वो मोदी और शाह के साथ रहता है, और वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि इन पॉलिटिक्स यू नेवर नो हु आर योर एनिमीज एंड हु आर योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेवर रिमेन friends and enemies never remain enemies. So that is how the politics work. So now he is in coalition with BJP, who are also fighting against the Shiromani Akali Dal SAD, which is fighting with alliance with BSP of course. तो SAD और BSP इस बार अलायंस में लड़ रही हैं। पहले देखा जाता था कि BJP और SAD आपस में मिलकर कांग्रेस से लड़ा करते थे, बट एज फार्म लॉज आए तो फार्म लॉज के बारे में जो इतना ज़्यादा गुस्सा था पंजाब में, स्पेसिफिकली जो सेंटर्ड पूरा प्रोटेस्ट था, वो SAD ने देखा कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, और अपने आप को उस एंटी इनकम्बेंसी से निकालने के लिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और इसलिए वो अब सारे अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वी आर वॉचिंग 4 to 5 हेड ऑन फाइट इन पंजाब। बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट, हंग असेंबली होना एक अच्छा केस नहीं होगा। तो अभी सारे बहुत ज़्यादा ही मतलब बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। एक हेड ऑन हेड फाइट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बट इफ़ यू सी द होल पॉलिटिकल सिनेरियो तो किसी को भी अभी मेजॉरिटी मार्क मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हम लास्ट के 5 दिन के इलेक्शन का जो इनका कैंपेन था उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई और उसका फ़ायदा किस किस को मिल सकता है। फर्स्ट कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग विद द PM सिक्योरिटी ब्रीच। बीजेपी की जो पूरी दिस होल लैंड ऑफ बीजेपी in Punjab is broken. Their feet are shaking. They have no ground reality in Punjab right now. They might win 1 or 2 seats maybe, but they don't have any kind of presence in Punjab's election because of the anti-farmer law against which whole farmer union were protesting, out of which 22 were based on Punjab. So actually 50% of Punjab was protesting against the BJP on the fronts of Delhi, and the others were supporting them. So basically BJP is in big loss right now. So for that people saw that ये इनका जो पूरा ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं इस बार भी कर रहे हैं। PM सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा बनाने की कोशिश किया, जिसमें प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, और उसमें उनके रास्ते के बीच 1 किलोमीटर की दूरी पे किसान प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से उनको 20 मिनट हाईवे पे रुकना पड़ा। वो हाईवे जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और फिर उनको वहाँ से वापस मुड़ना पड़ा। मुड़ते मुड़ते पॉलिटिकल संदेश दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि अपने CM को बोल देना कि मैं ज़िंदा लौट आया। तो ये बात जो थी, ऑल्दो ये सिक्योरिटी ब्रीच एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी पे PM का ऐसे 20 मिनट तक रुके रहना, पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पे PM का ऐसे रुके रहना एक खतरे की घंटी है। बिकॉज even if you like him or not, you love him or not, हमारे भारत का एक एक इंसान इस भारत की प्रगति में कंट्रीब्यूट करता है। वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी काम करता हो, छोटे से छोटा करता हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा उठा तो उन्होंने कोशिश की इसको तुल देने की, बट क्योंकि ग्राउंड में प्रेजेंस ना होने की वजह से इस मुद्दे का रेजोनेंस पंजाब में तो कहीं नहीं दिखा। तो पंजाब के लोगों ने इसको अपनी इंसल्ट और माना कि हम पंजाबी लोगों के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा कैसे कह दिया। वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू ने मिलकर मोदी जी पर अटैक किया कि नहीं, आप हमारे पंजाबियत पे शक कर रहे हैं, कि आप हमारे पंजाबियों को देशद्रोही बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब हुआ, लेकिन इसका जो फ़ायदा हमें लगा कि किसी ना किसी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, सब सोच रहे थे। लेकिन इस बार इस रेजोनेंस ना मिलने की वजह से ये थोड़ा कांग्रेस के फेवर पे गया। सेकेंड कंट्रोवर्सी स्टार्टेड व्हेन अरविंद केजरीवाल नेम्ड भगवंत मान एज द CM कैंडिडेट। सबको लग रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछली बार वाली गलती करने जा रही है, 2017 वाली, वो कोई भी CM कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने दिया। और जिसके बाद क्या हुआ कि
एक पूरा जो नैरेटिव है वो चेंज हो गया कि अरविंद केजरीवाल नहीं चलाएगा, उसने एक पंजाब के चेहरे को फेस बनाया है और वो काम करके दिखाएगा। एंड इवन संगरूर एमपी जो भगवंत मान है, उनका जो रिकॉर्ड है संगरूर में वो ठीक ठाक रहा है, उन्होंने काम किया है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको 2 बार बड़े मार्जिन से जिता के भेजा है, तो उनकी पैठ जो है अपने इलाके में तो बनी हुई है। और एक तरीके से वो पंजाब के आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दिया। उनके ऊपर कुछ केसेस हैं एल्कोहलिज्म के, लेकिन वो अभी इतना रेजोनेंस पकड़ते हुए नहीं दिखे, तो इसका फ़ायदा जो है फ़ायदा भी नहीं कह सकते, नुकसान भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसका एक पॉजिटिव नरेटिव जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। कांग्रेस ने इसको देखा तो उनको अब फोर्स हो गए कि वो भी कोई एक सीएम चेहरा दें, तो वो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को पिक किया फ्रॉम नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और चरणजीत सिंह चन्नी। इसमें क्या हुआ, लोग सोच रहे थे कि अंदर बगावत होगी, लेकिन फिलहाल के लिए राहुल गांधी ने इसको ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर लिया है। अब इसका क्या फ़ायदा है, चरणजीत सिंह चन्नी सिख दलित समुदाय से आते हैं, जो कि अराउंड 30 to 32% वोट शेयर रखता है पंजाब में, और पंजाब में दलित समुदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में है, SC ST और पिछड़ी जातियाँ, तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ऐसे में पहली बार पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो SC ST कम्युनिटी से आता हो, इसीलिए इसका फ़ायदा काफ़ी हद तक कांग्रेस को जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भगवंत मान जट सिख हैं, जिसकी प्रेजेंस हमारे पंजाब में कुछ 35-36% से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है मतलब, तो इसका फ़ायदा हम देख सकते हैं कि भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। इधर आप देखें तो इसलिए हेड ऑन हेड फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रही है। अभी जो रीसेंट मुद्दा आया अब कि कुमार विश्वास, जो कि पहले केजरीवाल के साथ थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को शुरू करने में केजरीवाल की मदद की थी, उन्होंने रिसेंटली केजरीवाल पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ही इज़ collaborating with anti-national forces, Khalistani forces of Punjab, and he might want to break away the faction of Punjab and make it an independent nation and become the prime minister of that particular Sikh nation, खालिस्तान जिसको कहते हैं। पर इस जो पूरे जो आर्ग्यूमेंट था, ये पूरा जो फॉल्स एलिगेशन लगाया गया केजरीवाल पे, जो वो क्लेम कर रहे हैं फॉल्स है, अभी नहीं पता कि फॉल्स है या नहीं ये एलिगेशन, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आके सफाई दी कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कोई एंटी नेशनल काम कर रहे थे तो 10 साल से 7 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट है, आप इसको क्यों नहीं बनाते हो, फिर आपने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई, तो एक वो इशू बना। पर इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो कांग्रेस और BJP उठा रही है। अब कांग्रेस क्यों उठा रही है, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल गया केजरीवाल के खिलाफ काम करने का। लास्ट 2017 इलेक्शन में खालिस्तानी प्रो लीडर्स को आम आदमी पार्टी ने एंडोर्स किया था, जिसका जो दिक्कत है उनको भुगतनी पड़ी। उन लोग सोच रहे थे उनका क्लीन स्वीप होगा, लेकिन उनको सिर्फ 20 सीटें आई। उनमें से ये कारण था कि उन्होंने कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट किया था, ना चाहते हुए भी। उनका कोई इंटेंशन था या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी गलती तो हुई थी, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो इसीलिए कांग्रेस वापस से वो 2017 वाली बात रिपीट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने वो लेके आए। यहाँ BJP अपना ग्राउंड फिर से ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसका ग्राउंड अभी पूरी तरीके से हिला हुआ है आफ्टर द फार्म लॉस। तो वो क्या कह रही है कि अगर मैंने हिंदूज़ को डरा हुआ दिखा दिया तो हिंदूज़ ऑटोमेटिकली BJP की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि BJP इज़ द प्रो हिंदू पार्टी, और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को ना मिले, इसलिए उन्होंने ये खालिस्तान वाला कर दिया कि अगर सिख नेशन बना तो हिंदुओं का क्या होगा। तो ऐसा नैरेटिव चलाने की फिर से कोशिश की गई, जो फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल पूरा कर लिया। केजरीवाल तुरंत सामने आए, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है, आप गिरफ्तार क्यों नहीं किए, 7 साल से आपकी सरकार है, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी हद तक इस डैमेज को भी बचा लिया। पॉलिटिक्स का गेम है, पॉलिटिकल एक्यूजेशन तो चलता रहेगा, लेकिन हमें ये जरूर समझना होगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष पे निजी टिप्पणी जब करते हैं तो उसका नुकसान जो है हमें अभी नहीं, अभी इलेक्शन में शायद जीत दिला दे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक फलता फूलता नहीं है, और हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इलेक्शन शुड बी फॉट ऑन एजुकेशन, हॉस्पिटल बेड्स, सड़कें कितनी बनी हैं, रोड कितने बने हैं, कोविड में डेथ हुई तो क्या मुआवजा मिला या नहीं, कितने लोगों के पास कोविड टेस्टिंग किट्स पहुँचाई जा रही थी, कितने लोगों को टेस्टिंग कराई जा रही थी, कितने लोगों को वैक्सीन मिल रही थी। इन सब से हटके यहाँ पे जाट वर्सेस हिंदू वर्सेस दलित की जो ये राजनीति सारी पार्टियाँ करना चाह रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आम आदमी पार्टी, जिन्होंने ये बोला कि
सुनील जाखड़ का इशू उठाया कि सुनील जाखड़ के पास 42 एमएलएस थे, वो हिंदू थे इसलिए उनको बनाया नहीं गया, तो हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं कांग्रेस, और इन्होंने दलित को किया। तो इन्होंने एक दलित वर्सेस हिंदू वर्सेस जट से कार्ड खेलने की कोशिश की थी पंजाब में, जो कि इवेंचुअली काम करती भी नहीं दिखी इनके खिलाफ। देन कांग्रेस कूद गई कि हमने तो दलितों को आगे बढ़ाया है, दलित प्रो दलित पार्टी बनने की कोशिश करी कांग्रेस ने, जिसमें वो अपने आप को चरणजीत सिंह चन्नी के लीडरशिप में ठीक करते हुए दिखे गए। लेकिन उन्होंने एक काउंटर बैलेंस करने के लिए 3 लोगों को आगे किया। एक थे सुनील जाखड़, दूसरी तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू, और तीसरे थे चरणजीत सिंह चन्नी खुद। तो चरणजीत सिंह चन्नी सिख समुदाय दलित समुदाय से आते हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जट सिख हैं, और सुनील जाखड़ जो हैं वो हिंदू हैं। तो तीनों का एक काउंटर बैलेंस बना के उन्होंने सबके ऊपर नज़र लगाते हुए, सारे वोट शेयर को लेते हुए एक पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो मेन सबसे चेहरा है वो है भगवंत मान, जो कि जट सिख है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल, जो कि हिंदू हैं। अब उनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है दलित समुदाय से, हालांकि उनके पास चीमा जी हैं जो एलओपी भी रहे, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े लीडर नहीं हैं जितने मास लीडर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये पूरी जो पॉलिटिक्स थी, लोगों को लग रहा था कि यूपी इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन तो रंगों से भरा होता है, इतना बड़ा जाट लैंड है, फिर यादव लैंड है, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग अंडरडॉग निकला वो पंजाब इलेक्शन निकला। इतने सारे पॉलिटिकल ट्विस्ट और टर्न्स, और पूरा जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो उलटफेर हो गया है, इसके बीच में जनता कैसे वोट करती है। इवन द पीपल ऑफ द स्टेट आर वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बॉर्डर स्टेट है, सीधा पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बॉर्डर है, जहाँ से टिफिन बम आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहा है। उन सबको टैकल करने के लिए आप एक वीक सरकार नहीं दे सकते, आपको मेजॉरिटी वाली सरकार देती है, और मेजॉरिटी भी छोटी मोटी नहीं, कम से कम 5-10 सीटों की मेजॉरिटी, जो कि एक स्टेबल सरकार रहे। क्योंकि बॉर्डर स्टेट को हमें ठीक से रखना पड़ता है, और उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पंजाब की जनता पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ पंजाब वोट्स, और ये वोट किसको जाते हैं। I hope you like the content of the video. If you do, then do press the like button, do share it with your friends. और ऐसे ही हम इस पॉलिटिकल सीजन में और भी वीडियोस बनाएंगे। We are thinking of making a video about उत्तर प्रदेश now and also covering some part of मणिपुर, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो एक मेन लैंड से थोड़ा दूर है, तो उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को नहीं है। तो मैं भी अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जो चेंजेस आए सिनेरियो में, मणिपुर में क्या हाल है कांग्रेस का और बीजेपी का, वो सारा मैंने पढ़ा है। और उसके हिसाब से जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं क्या बोलते हैं, और जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह अनोन्स है जो वहाँ रहते हैं, उनके क्या फीडबैक्स हैं, उसके हिसाब से हम जल्दी ही वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बट यूपी की वीडियो ज़रूर आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियोज़ दैट वी आर मेकिंग. If you do, then do subscribe the channel and do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.